Adab, just to go with the evening, and welcome to the online Adda at Maja House. And I'm delighted to welcome all of you. Delighted, Sunil, that you're here with us. Lifetime of friendship and a man of many paths, a performer, an actor, a writer, and an activist whom I've known for a very long time and love dearly. I am here just for a couple of minutes to tell you a little bit about Maja House, this new, unique cultural and literary space that we have set up in Amritsar. Right now, of course, I'm sitting in Delhi, I'm not there. But the one good thing about this lockdown is that we can talk to each other and share our stories across all these different boundaries and regions that we are in. So whether you're sitting in India or elsewhere, we are all able to connect and get together. Maja House, as I said, is a literary and cultural space set up in Amritsar. We opened our doors 2 years ago in March 2018, and Sunil was very much there with us that time as well. And we had a fabulous festival, the Basant Festival, where we had some of the finest, most brilliant writers and performers come to Maja House and perform on our lawns and at some of the best venues in the city. Maja House represents the indomitable spirit of Punjab, ever resilient, ever hopeful, and looking towards a peaceful and prosperous future. To celebrate this spirit of regeneration, it offers a platform for hosting talks and discussions, workshops, exhibitions, and performances. Maja House also seeks to create opportunities, especially for young people, by creating linkages as we celebrate this whole culture of dialogue, and we provide a free, liberal, non-intimidating platform for critical thinking around socially relevant issues and concerns. And of course, we have a great deal of fun while we do it. We have a lot of poetry, we have a lot of other performances of song and music. Today, 4 festivals and countless standalone events later, we decided that we should now move on to the online platform, since we've all been in lockdown since around the 20th, 22nd of March. So beginning of April, we started these online naddas. And every Wednesday and Saturday, we do this. So the idea is to just continue with the work that we are doing and to bring these discussions, conversations, performances right to your home. So we ask you to join our journey and to support us and support this world of ideas that we are bringing to you. Gurpratap, can we now have you please take the conversation forward? We want to do a little bit of a conversation with Sunil, and then he will launch into his kissas, which is what we are all looking for this evening. Thank you. Thank you, Preeti. And enjoy the evening. Before we begin, Gurpratap, if I might thank Maja House for this forum. And once again, yet once again, put on record my deep appreciation of Gugu Gill and Preeti's salutary effort to do what they have done, to be doing what they're doing, and most importantly, to be putting their money where their mouth is, as I've never tired of repeating on numerous occasions in Amritsar and elsewhere. So I think what they're doing for Punjab, what they're doing for culture, what they're doing for young people over there is incredible. And of course, we do know Amritsar and Lahore were sister cities, twin cities, the epicenter of culture. So thank you guys for restoring that to Amritsar. It always had it. It is high time it is high time it was acknowledged as the vibrant, beautiful, lovely cultural space that it is, as the cerebral epicenter that it has always been. Thank you. Thank you. So, good evening, everyone, and I'm delighted to have this opportunity to welcome and introduce Sunil Mehra and what he does best, that is Dastan Goi. That's so unfair. That's so unfair. आज नजर आ रहे हैं. All my life I was a journalist. Without his, I do best only at Dastan Goi. चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाइए. Sunil Mehra जी आपको नजर आ रहे हैं without his regalia and his Lucknowi getup. और I had rather been hoping कि इनकी टोपी वोपी सब दिखेगी हमें, पर टोपी तो है नहीं. But I would like to share with all of you that he's going to go and get the topi.
आप इनको जानते हो अच्छी तरह से एंड यू आर फेमिलियर विद हिज वर्क्स एंड व्हाट ऑल ही डज. तो ही वेयर्स मेनी कैप्स, ही डॉन्स मेनी हैट्स. और ये राइटर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, सोशल कमेंटेटर भी हैं और दास्तान गो भी हैं. इन्होंने उरी में भी एक रोल किया था, एक पाकिस्तानी जनरल ऑफिसर का, एंड दैट वाज मच अप्रिशिएटेड. सुनिए, ज़्यादा बात आपके करियर के बारे में करते हैं, आपकी लाइफ चॉइसेस के बारे में. एक वर्ड मैंने आपके साथ एसोसिएट किया है, मुझे लगता है कि आपके साथ बिल्कुल ठीक है. दैट इज द वर्ड इंटरप्रेट. मेरे को लगता है कि आप चाहे सोशल मीडिया पे हो, आप लाइफ चॉइसेस की बात करें या अपने करियर की बात करें, तो उसमें आप हमेशा बिल्कुल फियरलेस सामने आते हो. आप कभी वर्ड्स नहीं करते, कभी ओपिनियंस अपने छुपाते नहीं हो टू साउंड पॉलिटिकली करेक्ट. ये इनग्रेन शुरू से कि आपने धीरे धीरे इसको कल्टीवेट किया? आई थिंक कुछ तरबियत का भी फर्क पड़ता है, बिकॉज आई थिंक वालिदैन थे बहुत ही बेबाक थे, यू नो. तो आई थिंक विरासत में मिला है उन्हीं से. मेरे ख्याल से घुट्टी में था. बट आई विल एडमिट मेकिंग द चॉइसेस वन डज इन लाइफ can be sometimes lonely, and can be sometimes uphill, and you often find yourself isolated. But on the other hand, especially the times that we're living in, morally, you'd be a coward if you didn't stand up for what you really felt strongly about. And I think that is what defines us as human beings, doesn't it? That we stand up for what we believe in. Otherwise, what's the point, really? You know, when there was war, we were for war. When there was peace, we were for peace. When there was war, we went. If that is our credo, then it's rather sad, isn't it? So, yeah. मैं लाइफ चॉइसेस की बात कर रहा था और करियर की बात कर रहा था. आई बिलीव कि आपने सिविल सर्विसेज का जो पेपर था एडमिशन का, वो भी एंट्रेंस पेपर आपने क्लियर किया, बट देन यू चोज नॉट टू गो. और I thought there are two schools of thought on that. One is that the civil services gives you a huge canvas, which is undeniable. The other thing also is that we'd be naive to say, can everybody hear me? Can everybody hear me? इसकी आवाज आपकी फर्क हो रही है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा स्क्रीन के पास आएंगे और तो we can better. Now, can you hear me properly? जी. Can you hear me now? जी, all right? जी. Okay. So the IAS, the civil services give you that wide canvas, but we'd be naive to assume that it is a canvas that does not come without constraints, that you're not prescribed. वो आपको एक जगह में नहीं रखता है, because जो आपके आका होते हैं वो हर 5 साल पे बदलते हैं, तो वो आका की जी हुजूरी बहुत माने रखती है, जरूरी होती है. Absolutely, तो काफी भटका. पहले सिविल सर्विसेज का ऑप्शन था, वो अपने टर्न डाउन किया. उसके बाद थोड़े आइडियलिस्टिक थे, तो कहा कि चलो भाई टीचिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, वहाँ जाते हैं. टीचिंग में गए तो ऐसा लगा जैसे रेलवे गार्ड बन गए. हर 3 साल गाड़ी आती थी, गाड़ी जाती थी, और मैं हरी झंडी लेके या कभी लाल झंडी लेके खड़ा होता था. तो उससे भी थोड़े से बड़े बेआबरू होके उसके कुछ ऐसे निकले. देन जवानी थी तो थोड़ा ग्लैमर भी था, सो got into the corporate world for a while, got into the Oberoi, decided it was a brainless pursuit. I'd much rather go to a hotel than work for one. And that is when journalism found me, because I assessed my skills and I said, I can read, I can write, I can communicate. And so journalism, and I wanted to say my piece. And I was very, very fortunate to literally walk into a job with India Today. And I never looked back after that, because I really found my niche with journalism. And it was a kind of environment. एक बार मेरे घर पे I got locked out, and I rang up Arun Puri, I remember, and says, Arun, I can't come to work, you know, I'm in my shorts. So he says, who cares? Come in your shorts. So I said, okay, I'll come in my shorts. So that's what happened. I landed up in my shorts to work. It was fantastic, because what is important is what you're saying. The story should go out. So वो खत्म हुआ, तो it was a natural gravitation towards television and film. और जब television, film और journalism, तो आप जानते हैं journalism का अब क्या हाल है. You know, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा.
तो जब जर्नलिज्म का ये है शो हो गया तो दुआ सलाम करके वहां से भी पतली गली से निकल गए और आ गए दास्तान गोई पे, क्योंकि दास्तान तो बहुत पुराने सुनाने वाले हैं और दास्तान गो पे तो एक खास जिम्मा रहा है कि जो भी जिस माशरे से हम गुजर रहे हैं उस माशरे पे दास्तान गोई करना दास्तान गो का फर्ज बनता है। और दास्तान गोई तो है लाइक द शेक्सपियर क्लम, जो एक आईना रखता है जमाने के सामने, जिस आईने में जमाने को अपना सूरत देखने को मिलता है। तो आप दास्तान गोई कर रहे हैं और बड़े मजे भी कर रहे हैं, कभी लिख भी लेते हैं, कभी टेलीविजन भी कर लेते हैं, फिल्म भी कर लेते हैं। तो दास्तान गोई में अभी काफी दिल लगा हुआ है। तो ये रही ट्रैजेक्टरी। काफी चेकेड करियर है आपका। ये बताइए कि दास्तान गो में ऐसा है, मेरे नेव्यू से मैं कई बार बात करता हूँ तो बड़ा माहौल होता है। तो यू नो व्हाट, मेरे नेव्यू का मैं सीवी लिख रहा था, अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो मैं कहा, यू नो बेटा, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स एंड हाउ वंडरफुल बिकॉज़ यू आर सो डाइवर्स। एंड हमारे जमाने में तो वी वर ओनली कॉल्ड फिकल। सो फर्क नजरिए का जी, चेकर्ड और डाइवर्स। आप आज हमारे सामने लेके आए हैं दास्तानें काफी सारी लखनऊ से। पर ये बताइए कि आपकी जो लखनऊ से जो आपकी दास्तां है इश्क की, वो कब शुरू हुई? वही घुट्टी में विरासत में है, बड़ी यूनिक मैरिज थी। द दूध वाला मैरिड द लस्सी वाली। माय डैड वाज फ्रॉम लखनऊ एंड माय मदर वाज फ्रॉम मुल्तान, नो लेस। सो कहाँ मुल्तान और कहाँ लखनऊ, यू नो। तो I got the best of both worlds, really, you know. Okay. So from Punjab is where I get my do or die spirit, you know, कि भिड़ लो, कर गुजरो। और जो लिहाज है और थोड़ा सा अदब है और शऊर है और सलीका है और अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े बयां है, वो भुट्टी में मिल गया वालिदैन से उसको। सो बड़ा मजेदार है। It was always like I was a schizophrenic, always traversing two worlds. तो बड़े जिंजरली। तो जब माँ अपने ननिहाल में जाता था तो तू आया, तू बैठ, तू खा, वो तू पी। और वहां जाते थे तो अपने ददियाल को आप आ गए, बैठिए, क्या खाएंगे, क्या लोगे बेटा, कैसे हैं आप। सो वो दो दुनिया इतनी मुख्तलिफ थी, उनमें मजा बड़ा था। तो ऐसा लगता था जब शुरू में मेरे ननिहाल से मेरा एक्सपोजर कम था, जब तक मेरे वालिद साहब जिंदा थे। तो जब मैं अपने पहली बार अपने ननिहाल से मिला, मुझे लगा मैं मार्स में आ गया। तो धीरे धीरे लुत्फ आने लगा, मैंने यार ये अच्छा मजेदार है। सो दोनों तरफ का बड़ा भरपूर जायका लिया, बड़ा मजा आया। और आई बिलीव कि आप जब दास्तान गोई करते हो तो जो स्टोरी है, कहानी है जो आप चुनते हो, उसको आपको बहुत बारीक पढ़ना पड़ता होगा ना। जैसे एक आम आदमी पढ़ता है कहानी, आप उसके नुएंसेस भी पढ़ते होगे, आप उसके केडेंसेस भी समझते होगे कि इसको अगर बोलना है, इसको अगर सुनाना है तो किस शब्द पे ज्यादा जोर देना है, किस अल्फाज को ऊंचा करके बोलना है, किसको धीरे करके बोलना है। तो वो केडेंस आमतौर पे रीडर के पकड़ में नहीं आता। तो आई एम प्रीटी श्योर वो आपके लिए ज्यादा होता होगा। तो दास्तान गोई करते करते आपका जो लिटरेचर और के साथ प्यार है, जो इश्क है, क्या वो भी और ज्यादा डेवलप हुआ? See, like you, I also taught literature at university for 5 years. So, जहाँ तक दास्तान का सिलेक्शन पे ही बात आती है, first of all, the story has to speak to me. And आपने दो तीन चीजें कही, जो बहुत अहम आपने मुद्दे उठाए। पहली चीज आपने कही कि आपको केडेंस और उसका किस लफ्ज पे कितना स्ट्रेस डालना है वगैरह वगैरह, वो आ जाता है। तो अक्सर ये होता है जब मैं शुरू में परफॉर्म करना मैंने शुरू किया, तो जब मैं ऑडिशन कर रहा था फॉर को परफॉर्मर, तो अक्सर मेरे को एनएसडी के एक्टर्स आ जाते थे ऑडिशंस के लिए मेरे साथ, और वो समझते थे कि नाटक हो रहा है। एंड आई वुड ऑलवेज टेल देम दैट यू नो ये नाटक नहीं है, यहाँ का जो मेन किरदार, द एक्टर इज द लैंग्वेज, नॉट यू. So do not mistake this for theatre, because it is not theatre. The actor is the spoken word. तो जो आपने मुद्दा उठाया केडेंस का और नुआंस का और लफ्ज का और अल्फाज का, वो बहुत अहम है।
और वही मेन मुद्दा है दास्तान का। जहाँ तक मेरा सवाल उठता है, मेरा और अस्करी का जो मेरे साथ को परफॉर्म करते थे और फिलहाल नहीं कर रहे हैं, आजकल कुछ और चीज़ों में वो मसरूफ हैं, पर मैं अकेला कर रहा हूँ आजकल। पर दास्तान मैं महज हंसी मखौल और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करता हूँ। मैं दास्तान वो ही करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है जिस माशरे से हम गुजर रहे हैं उसमें या तो दो सूरत, या तो सोशल मीडिया पे हम रैंट करें, ठीक है ना, और ऑल फॉल बोले और गाली गलौज करें और एक अपने बबल के अंदर बैठ जाए, एक ग्लास रूम के अंदर बैठ जाएं जहाँ हम अपनी दुनिया क्रिएट कर लें और स्पीक ओनली टू पीपल लाइक अस एंड प्रिटेंड कि हमने सारी दुनिया से तलाक ले लिया। दूसरा ये है कि अगर आपको अपनी बात कहनी है और सुनवानी है और एक मैसेज देना है तो ये साइकिल्स ऑफ हिस्ट्री हो, ये जो जिस माशरे से आप गुजर रहे हैं आपको लगता है कि हमारे पे बड़ी कहर आ गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये महामारी, ये मारामारी, ये कोरोना, भले दिमाग का हो, भले दिल का हो, भले बदन का हो, ये कोरोना जो है ना, जहनी कोरोना और कम्युनल कोरोना, ये हमेशा रहा है और इस माशरे से कई बार गुजरे, 47 में गुजरे, 2002 में गुजरे, 1984 में गुजरे, ये तो हमारी याददाश्त में। और ब्लैक डेथ और प्लेग का भी आजकल जिक्र आ रहा है और स्पेनिश फ्लू का भी जिक्र आ रहा है। तो हर माशरे में आर्टिस्ट, राइटर्स, पोएट्स, क्रिएटिव पीपल हैव कमेंटेड ऑन इट। तो ये अलग बात है कि ना तो हम उन्हें वापस पढ़ते हैं और ना उस पर हम गौर करते हैं, क्योंकि इस दौर से गुजर चुके हैं। तो नसीहतें भी वही हैं और क्या करना है उसकी राह भी वही है। तो दास्तान गो की हैसियत से हम तो खाली इतना सा कोशिश करते हैं कि इन दास्तानों के जरिए कुछ अगर हम कहला सके, किसी को सुना सके, जद्दोजहद के बजाय एंटरटेनमेंट के बहाने हम उनको जरा से कुछ कह सकें। और अगर 500 आदमी सुनने आता है, उसमें से 50 आदमी भी वो मैसेज देके चला गया तो हमारा पैसा बच गया। जिस मकसद से हम वहाँ पे आए थे, पूरा लिबास पहन के जो बैठे थे वहाँ पे मिरासी की तरह, अगर आप मिरासी की बात सुन के और शेक्सपियर क्लाउन का विजडम ले गए घर तो हम बड़े खुश। ये होता है दास्तान में। और सो जैसे मैं इसमें चुगता ही पढ़ता हूँ, अक्सर इसमें चुगता ही पढ़ता हूँ, क्योंकि वो औरतों की बात करती हैं, औरत के वजूद की बात करती हैं। और पेट्रियार्की किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करती है? औरतों से ना। फ्री रेडिकल है ना, any independence of spirit is to be discouraged. So precisely the kind of people they love to hate are the kind of people we love to love, and therefore showcase and present. And there is a moral in the story over there. If you're smart, you catch the idea, take it home. If you're not, you're entertained, na? Chaliye, paisa vasool, dono khush. So yeah. आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, आपने जो कहानियां चुनी हैं वो हिमांशु वाजपेयी की किताब से हैं। किस्सा किससे हुआ? एक तो इस अल्फाज के बारे में बताइए कि लखनऊ हुआ क्यों, और दूसरा ये भाई हिमांशु बड़ा रंगीन तबीयत आदमी और स्कॉलर है, मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत दास्तानगो है और बड़ा खूबसूरत इंसान है। और मैं तो ये मानता हूँ, मेरे लिए तो it's axiomatic, it's a fact of life for me, it's a life truth for me कि you cannot be a good performer or a good anything if you're a good human being. Himanshu is a very good human being. और उसने जो लिखी है किताब बिल्कुल तहे दिल से लिखी है। उसका नाम है किस्सा लखनऊ। तो कोई शहजादियों, नवाबजादियों की कहानियां नहीं है जो आप लखनऊ में अक्सर सुनते आते हैं। ये कहानियां लखनऊ के आवाम की, लखनऊ के आम आदमी की। जो सड़क चलता है, लखनऊ का रिक्शा वाला है, पान वाला है, लखनऊ की गाने वाली है, गुल फरोश, फूल बेचने वाली है, उनकी कहानियां हैं। क्योंकि लखनऊ एक अंदाज है और लखनऊ उन लोगों का अंदाज है जो लखनऊ में बसते हैं। क्योंकि लखनऊ वाले को आप कहीं पहचान लेते हो, तो इसीलिए कोई लखनऊ की शहजादी लखनऊ अंदाज की है। तो लखनऊ किस्सा लखनऊ का है, इसलिए इस किताब का टाइटल भी वही है। और हिमांशु ने बड़ी खूबसूरती से ये किस्से कई सालों से सुनते आए हैं लोग, पर ये अगर किस्से जाने देते, मर जाते, इनको रिकॉर्ड ना किया जाता तो शायद हम लोगों के लिए एक
काफ़ी घाटा हो जाता है। तो हिमांशु ने बड़ा खूबसूरत एफर्ट किया है और इस रीडिंग के जरिए मैं पहुंचाना चाहता हूँ एक ऑडियंस को। आई थिंक एवरीवन इज नाउ पेप्ड अप कि अब कहानियां सुने, दास्तानें सुने। तो अब शुरू करते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है सबके लिए, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, कि आपके ऑडियोज फिलहाल तो ऑफ हैं, पर आपके वीडियोज अभी ऑन रखे हैं। आपको अगर किसी कहानी के बारे में बीच में कुछ बात करनी है तो आप प्लीज चैट का इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू से एनीथिंग। और दास्तान वही पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको 10-15 मिनट का मौका दिया जाएगा जब आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कोई और सवाल पूछ सकते हैं। इब्तिदा। तो जनाब, आज हम दास्तान गोई नहीं कर रहे, किस्सा गोई कर रहे। तो किस्से सुना रहे हैं लखनऊ के आपको, पर किस्सा गोई हो या दास्तान गोई हो, हमेशा हम पहले एक साकी नामा पढ़ते हैं, जिसमें क्योंकि ये किस्से या दास्तानें सुनाई जाती थी पहले नवाबों के घर, महाराजाओं के घर, नवाबों के घर। जब वो महल ढह गए तो ये नोबलमैन के घर में आ गई, अवाम के घर में आ गई। अवाम के घरों से निकली, बीवी ने कहा क्या कर रहे हो घर में, हल्ला कर रहे हो, तो शराब खाने पहुंच गई। शराब खानों में जब किस्सा कोई और दास्तान हुई, जाहिर बात है साकी को तो पहले समन किया जाता है, साकी को तो पहले आदाब करना पड़ता है। तो साकी नामे के साथ दास्तान का आगाज करते हैं। तो इजाजत हुजूर, किस्सा कोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है, खुश आमदीद। नाचीन सुनील मेहरा, पेशे खिदमत है आपकी साकी नामा, और फिर किस्सा लखनऊ हुआ। किस्सा लखनऊ हुआ। इजाजत। बिस्मिल्लाह। नाजों को उठाने वाले साथी, रिंदों को चकाने वाले साथी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है। फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादे ना। वो जाम जो रश के जाम जम हो, वो मैं कि न जिसका नशा कम हो। वो नशा जो दिखाए नौ रंग, तकरीर में हो तिलस्म का ढंग। फिर वही जाम पिला दे साथी, जिसमें के हो तेरा नाम सा। अकलीमे सुखन को मैं करूं सर, मत्ता रहे मेरे सुखनवर, यानी कि आप सब मुश्ताक हैं अहले जीनत देहे बागे कामरानी। ऐ जाह बने मेरी कहानी, वो फूल झड़े मेरी जुबान से, हर सफा न कम हो दोस्ता से। मुश्ताक हैं अहले बज़्म जा, यानी आप सब देख रहे हैं देर से रात। आगाज़े बयां करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्तां से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। तो हाजरीन, पेशे खिदमत है किस्सा लखनऊ। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि भाई आप ये लखनऊ के किस्से क्यों सुनाते हैं, तो उसका हम एक ही जवाब दे सकते हैं कि भाई लखनऊ से एक रूहानी खानदानी ताल्लुक तो है, रूहानी ताल्लुक है मेरा। क्योंकि लखनऊ एक अंदाज है, लखनऊ एक दिल की बात है, लखनऊ इज अ फीलिंग, लखनऊ इज नॉट अ सिटी। तो अक्सर ये देखा गया है कि लखनऊ की बात जाती रही है, कुछ ही लोग रहे हैं, चंद बूढ़े लोग रह गए हैं जो लखनऊ के बाशिंदे माने जाते हैं, जिनमें लखनवियत कायम है। धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे तो ये चीज़ें भी चली जाएंगी, और ये चीज़ें जाना नहीं चाहिए। आने वाले सालों में अगर ये चली गई तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि लखनऊ मेरे वजूद का एक हिस्सा है। हिमांशु का मेरा एक बड़ा खूबसूरत दास्तान को दोस्त चड्डा, जो महज 33 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। और अंकित एक बड़ी खूबसूरत बात कहता था, जिससे कि मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि ये जो कहानियाँ हैं, हर एक आदमी के पास एक कहानी होती है या कहानियाँ होती हैं, और ये कहानियाँ हमारे वजूद का हिस्सा है। और ये ज़रूरी है कि ये कहानियाँ सुनाई जाएं और ये कहानियाँ कायम रहें, क्योंकि ये कहानियाँ अगर ख़त्म हो जाएंगी तो इनके साथ हमारे वजूद का एक हिस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये पूछा जाता है कि सर लखनऊ ही की क्यों बात करते हैं, तो एक जवाब है छोटा सा, मुख्तसर सा, मुझे लुत्फ आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो लखनऊ की गलियों में बेसबब भटकना कुछ ऐसा है जैसे माशूक की जुल्फों का खम निकालना। तो ये है साहब लखनऊ की बातें। तो पेशे खिदमत है आज का पहला किस्सा
किस्सा किस्सा लखनऊ हुआ, दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, यानी दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, इजहारे बुए मुश्क गजालों के सामने, यानी लखनऊ वालों के सामने साहित्य की बात करना, गुफ्तगू की बात करना, जुबान की बात करना, बयान की बात करना, सुखन की बात करना, ये वैसा ही है जैसे आप कस्तूरी मुर्ग के सामने खुशबू का जिक्र कर रहे हैं। तो आज बात लखनऊआ अंदाज़ गुफ्तगू पे। तो हाजरीन, उर्दू के क्लासिक नॉवल उमराव जान अदा में जब उमराव जान कानपुर चली जाती हैं तो वहाँ कानपुर की एक बड़ी खानम उनसे मिलने आती है और उनसे तजवीज़ करती है कि भाई उमराव, आज शाम को तुम्हें इस मुजरे में आना है। तो उमराव जान से कहती हैं, आए बड़ी थी, आप लखनऊ की हो? हाँ, अभी तुम्हें कैसे मालूम कि हम लखनऊ के हैं? तो उमराव जान फरमाती हैं, बड़ी भी बातचीत का करीना कहीं छुपता है क्या? तो ये है हुजूर लखनऊ की जुबान कि आप पूरी दुनिया में कहीं जाइए, अगर अपनी बातचीत और अपने अंदाजे बयां अपनी गुफ्तगू से ना पहचान लिए जाए तो मेरा नाम सुनील मेहरा लखनऊ है। तो कई लोग पूछते हैं कि भाई ये लखनवी अंदाजे गुफ्तगू आखिर है क्या भला, क्यों इसकी इतनी चर्चा है? तो हम उसको यही कहते हैं कि उर्दू है नाम जिसका हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है नाम जिसका हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। अब दाग लखनऊ के तो नहीं थे, तो उनका जो मिसरा है ये लखनऊ पे बिल्कुल सादिक आता है। उर्दू के तमाम बड़े शायरों ने, ख्वाह वो लखनऊ के हो या किसी और जगह के, लखनऊ जुबान की तौसीफ की, तारीफ की कि वो करे बात तो हर लफ्ज में खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, सलीके से जो हवा में खुशबू बोल सकते हैं, सलीके से हवा में वो खुशबू बोल सकते हैं। कुछ लोग अभी बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो हाजरीन, सवाल ये है कि क्यों मशहूर है भाई लखनऊ की जुबान दुनिया भर में? तो आपको मैं एक मिसाल देता हूँ और ये बड़ी मजेदार मिसाल है। तो साहब, एक शख्स ने टेलीफोन किया अपने एक दोस्त को लखनऊ में, तो उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो प्यारे? तो आप फरमाते हैं, भाई अभी मैं बड़ी शिद्दत से इज्जत व अजमत की डोर को बेपनाह उलझनों की गिरफ्त से आजाद करने की कश्मकश में मुब्तला हूँ। मैंने क्या समझा नहीं? आप फरमाते हैं, भाई साहब पजामे का नाड़ा उसमें गांठें पड़ गई हैं, भाई खोल रहा हूँ। तो ये होता है अंदाजे बयान, ये होता है लखनऊ। साहब क्या कह रहे हैं कि अभी मैं बड़ी शिद्दत से इज्जत और अजमत की डोर को बेपनाह उलझनों की गिरफ्त से आजाद करने की कश्मकश में मुब्तला हूँ, मैं पजामे का नाड़ा खोल रहा हूँ। तो ये हुई लखनऊ। अब साहब, लखनऊ की बड़ी चर्चा सुने एक शख्स ने दिल्ली में, तो वो गए लखनऊ, कहते हैं जरा देखें तो सही कि लखनऊ में होता क्या है, ये क्या है अंदाजे में, जाके तफ्तीश करते हैं। भाई आए लखनऊ, उतरे चारबाग स्टेशन पे और सीधे पहुंच गए अमीनाबाद। अमीनाबाद पहुंचे तो वहां गुल फरोश, सब फूल बेचने वाली सब साड़ी में बैठी हुई थी। तो थे तो आशिक मिजाज, दिल्ली से आए थे और जुबान वही थी जैसे मेरे ननिहाल में थी, मुल्तान में भी। तो आप फरमाते हैं लखनऊ में जाके कि खूबसूरत थी, फूलों की टोकरी उनके सामने रखी हुई, तो साहब उन्हें घूर घूर के देखने लगी। तो जाहिर है भाई, ऐसे घूर घूर के अगर किसी खातून को देखोगे तो लखनऊ में तो बड़ा मायूब समझा जाता था ये। तो दीदी की निगाह से उस खातून ने इनको देखा, बोली क्या देखे भैया, क्या बात? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा। इस पर फूल वाली ने जरा तेवर खड़े की और सख्त लहजे में पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? तो आपने लहरा के कहा, अपनी पहचान छुपाई, कहते
हम लखनऊ के रहने वाले, ना मैं लखनऊ के तो तुम नहीं हो सकते, कि नहीं भाई हम लखनऊ के रहने वाले, ना लखनऊ के तो तुम हो ही नहीं सकते, सच सच बताओ। अरे भाई लखनऊ के हैं मियाँ, अगर तुम लखनऊ के होते ना तो इस तरह नहीं कहते, ये सब साड़ी में तेरा तन देख बड़े वो चक्के हुए कहते अरे कमाल कर रही हो, अच्छा अगर लखनऊ के होते तो क्या कहते? तो फरमाती हैं गुलफरोश, अगर लखनऊ के होते मियाँ तो हमें कहते सब्ज फानूस में एक शमा को रोशन देखा। तो हुजूर ये है लखनऊ का अंदाज़ है, सब्ज फानूस में शैंडलियर में एक शमा को रोशन देखा। तो ये हुई लखनऊ की बात। तो पेशे खिदमत है आज का दूसरा किस्सा लखनऊ का, और ये किस्सा है हाज़रीन, किस्सा दिल रुबाई का। तो किस्सा पुराना बहुत जरूर है पर मशहूर बहुत है। भाई इसी शहर में कभी एक हकीम साहब रहते थे लखनऊ में, शमशुद्दीन साहब, खिदमत खल्क के लिए जाने जाते थे, नाम था उनका, शफा था उनके हाथ में। एक बार वो मेयर के चुनाव के लिए खड़े हो गए। सबको यकीन था कि हकीम शमशुद्दीन जरूर जीत जाएंगे, पर साहब फंदा ये पड़ गया, मामले में पेच आ गया, जब उनके मुकाबले में लखनऊ की नामी तवाइफ दिलरुबा चुनाव में खड़ी हो गई। तो उन दिनों भाई लखनऊ में दिलरुबा का दौर दौरा था। वो सिर्फ नाम की दिलरुबा नहीं थी, उनके जलवे भी बड़े दिलरुबा थे, उनकी अदाओं में सचमुच वो कशिश थी कि वो दिल चुराना जानती थी सबका। खैर साहब, उधर शमशुद्दीन साहब का चुनाव प्रचार शुरू हुआ, उधर दिलरुबा भी लग गई अपने चुनाव के प्रचार में। तो शुरू में साहब हकीम साहब मकबूल आदमी थे, इसलिए उनके जलसों में बड़ी भीड़ आई। मगर बाद में दिलरुबा की दिलरुबा अदाओं ने हकीम साहब की मकबूलियत का तिलस्म तोड़ दिया और सारे झुंड उनके चुनाव चर्चा में आने लगे, उनकी मजलिस में पहुंचने लगे। उनके प्रचार में मौसीकी और शायरी का कुछ ऐसा संगम हुआ कि दिलरुबा की तरफ भीड़ टूट के जाने लगी। अब तक तो अपनी जीत को लेकर बड़े मुतमईन थे हकीम साहब, पर पहली बार थोड़ी परेशान हो गए। मगर वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे भाई, उन्होंने पैतरा बदला और एक चुनाव में ज्यादा संजीदगी अख्तियार कर ली। लोगों से मिलते वक्त वो सिर्फ शुद्ध राजनीतिक सवाल उठाते थे। इस मैदान में दिलरुबा का हाथ थोड़ा कमजोर था, वो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद हकीम साहब के पीछे ही रहे। भाई अदाएं मालूम थी पर मुद्दों पे उनकी थोड़ी अकल कम थी। अब हकीम साहब ने भी एक दमदार नारा दिया कि भाई दिलरुबा को दीजिएगा, वोट हमको दीजिए। तो दिलरुबा को दीजिए, वोट हमको दीजिए। अहले लखनऊ को इस नारे की गहराई समझ में आ गई, वोट पड़े और हकीम शमशुद्दीन साहब जीत गए। अब हकीम साहब की जीत का ऐलान हुआ तो दिलरुबा ने अपनी दरिया दिली का सबूत देते हुए खुद आकर हकीम साहब को जीत की मुबारकबाद दी, मगर इसके साथ ही एक शोक फिक्रा भी कस दिया जो अपने पोशीदा मायने के लिए आज भी याद किया जाता है। दिलरुबा हकीम साहब से फरमाई, भाई बहुत बहुत मुबारक हो हकीम साहब, बहुत मुबारक हो। तो ये तो कहना पड़ेगा, आप हो गए हम रह गए। खैर साहब, हकीम साहब दिलरुबा की चुहल समझ गए और मुस्कुरा के रह गए। बाद में जब हकीम साहब ने जीत की दावत की तो उसमें दिलरुबा को भी पूरे एहतराम के साथ बुलाया गया। दिलरुबा भी पूरे खुलूस के साथ उनकी जीत की महफिल में शामिल हुई उस दावत में। यही उन्होंने कुछ ऐसा जुमला कहा कि पूरी महफिल उनकी सुखन साजी की कायल हो गई। क्या जुमला फरमाया? दावत में हकीम शमशुद्दीन की जीत पर अपनी तकरीर में दिलरुबा बेगम ने फरमाया, हकीम साहब आपको एक बार फिर मुबारकबाद की जीत, मुबारकबाद आपकी जीत के लिए। हकीम साहब हमें हमारे हारने का गम नहीं है, क्योंकि यकीनन
आप इस जीत के मुस्तहक थे, मगर आपकी जीत से हुजूर एक बात तो तय हो गई है कि लखनऊ में अब मरीज ज्यादा, आशिक कम रहेगा। तो ये होता है लखनऊ का अंदाज़े उसे। तो पेशे खिदमत है आज का तीसरा किस्सा। सुनील जी, इससे पहले कि आप शुरू करें, हमारे पास ना काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी ऑडियो बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। तो उसका एक वजह तो ये है कि यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द नुएंसेस ऑफ द स्टोरी, पर थोड़ा सा ज्यादा करीब आके अगर बोले। एक मिनट, मैं एक मिनट करता हूं। जी सब माइक। हाँ, हमारी आवाज आ रही है? जी जी, अब ठीक से आ रही है आवाज? हाँ, अब आवाज ठीक है। मैं कावेरी कह रही है हेडफोन्स वर्क बेस्ट। कावेरी कह रही है जिन जिन लोगों के पास हेडफोन्स हैं वो प्लीज हेडफोन्स लगा लें तो बेहतर है। प्रदीप, कैन यू हियर मी? प्रदीप, आपको आवाज आ रही है? भाई लंदन तक तो आवाज आ रही है। अब ये कहना पड़ेगा कि अमृतसर शहर में कुछ कमजोरी आ गई है। सिर्फ कानों में आई लगती है। कानों में ही कमजोरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा चले, फराब बोल रही है हमारे हेडफोन्स का क्या कर रहे हैं? भाई हम तो हेडफोन्स को क्यों बोलेंगे, आप लोग सुनने के लिए सुनिए। बहरहाल, अब साहब पेशे खिदमत है आज का तीसरा किस्सा कि सज्जाद महमूद साहब कह रहे हैं he can hear perfectly with headphones and फराह भी कह रही है it's clear again। तो इंशाल्लाह आप सबको सुनाई दे रहा होगा जी। चलिए, मुझको ये दावा है कि हर महफिल पे छा सकता हूँ। तो पेशे खिदमत है आज का तीसरा किस्सा। भाई लंदन टोक्यो में भी आवाज आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुजरे जमाने की गायिकाओं में जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी को अफसानवी मकबूलियत हासिल हुई थी। छप्पन छुरी का किस्सा किसने नहीं सुना भाई? हर एक आदमी आजकल तो ये मुहावरा है, यही बड़ी छप्पन छुरी है। इस कदर कि छप्पन छुरी नाम अपने दौर के मुहावरों में शामिल हो गया। कहा जाता है कि उनके एक नामुराद आशिक ने उन पर छुरी से वार करके 56 घाव किए थे, तो इसके बाद उनका नाम छप्पन छुरी मशहूर हो गया। तो हाजरीन, दिलचस्प ये कि दुनियावी पैमाने पर जानकी बाई जरा भी खुश शक्ल नहीं थी। दरअसल वो निहायत भोंडी बद्दी थी। हाँ, दबा हुआ रंग, अनगढ़ चेहरा और जिस्म पे हर तरह के जख्मों के निशान। मगर गायकी में वो अदाएं, वो अंदाज कि लोग अश अश करते थे। वो अच्छा महाराज के इस जुमले की आबरू थी कि रंग रूप में कुछ नहीं होता, हुस्न तो फकत अदाओं का जादू है। तो सूरत से क्या होता है, सीरत भी कुछ मायने रखती है। हुस्न तो अदाओं का जादू है। अपने मुताल्लिक वो अक्सर नासिक लखनवी का एक शेर पढ़ती थी कि हुस्न को चाहिए अंदाजो अदा, हुस्न को चाहिए अंदाजो अदा, नाजो नमक लुत्फ क्या घर हुई कि गोरे रंग को चाटोगे, नाजो नमक लुत्फ क्या घर मिलेगा उसमें जो अंदाजो अदा में मिलेगा। तो ये शेर उन पे एकदम माफिक बैठता था। खैर साहब, जानकी बाई की शोहरत सुन के एक बार रीवा के महाराज साहब ने उनको अपने दरबार में गाने के लिए बुलाया। तो वो महफिल के लिए तैयार हो रही थी, तभी किसी की चुराई हुई नजर उन पर पड़ गई। नजर जो पड़ी तो वो दरबारी दौड़ के महाराजा साहब के पास गया। कहते कि साहब, ये गाने वाली के खदोखाल तो बेहद मामूली है, शाही महफिल का लुत्फ जाता रहेगा। ये सुनकर भाई महाराज ने आन की खातिर अपने दीवान से कहा कि भाई जानकी बाई को बसद एहतराम रुखसती दे दी जाए और उनकी जगह फौरन कोई खूबसूरत गायिका बुलाओ भाई। मगर जानकी बाई भी आखिर जानकी बाई थी, पूरी छप्पन छुरी थी। जब उन्हें ये मामला पता चला तो अपने मखसूस लबो लहजे में दीवान साहब से बोली कि सुनिए दीवान साहब, वक्त बहुत कम है, आप क्यों जहमत करते हैं, सुनिए, हमारी भी इज्जत का सवाल है, महाराज साहब की महफिल खराब नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ एक गाने वाली आई हैं पास के गांव में, खूबसूरत हैं माशाल्लाह, हम उन्हें बुला देते हैं आपकी महफिल के लिए।
तो एक शर्त पे आएंगी हुजूर कि गाते वक्त वो पर्दे में ही रहेंगी, दीदार गाना खत्म होने पे ही मुमकिन हो पाएगा। ऐसा मरता क्या ना करता। दीवान साहब ने कहा साहब बुला लीजिए, तो आ गई। बहरहाल जानकी बाई की जगह कौन ले सकता था हाजरी। यूं हुआ कि वक्त मुकर्रर पर जानकी बाई ने खुद पर्दे के पीछे बैठकर गाना शुरू किया और कुछ ऐसे शोखी नाज और अदा से गाया गया कि सामीन के सुरों पर मर मिटे, तबाह हो गए महफिल वाले सारे। आवाज सुनकर उस पर्दा नशीं चेहरे के तसव्वुर के दीवाने हो गए। महफिल जो खत्म हुई तो किसी में ताब ना थी कि उस पोशीदा चेहरे को देखे बिना वहां से चला जाए। महाराज सभी उस गाने वाली से मिलने के मुश्ताक थे। खैर साहब, आखिर पर्दा हटा और जानकी बाई आदाब करते हुए जलवा अफरोज हुई। जब आई तो महाराज ने देखा, वो तो देखते ही रह गए, बक्के बक्के रह गए। आप कुछ बोल ही नहीं पाए, हैरत ज़दा थे। तो फिर खुद जानकी बाई बोले कि हिंद हुजूर, बज़्म की रौनक सीरत से होती है, बज़्म की रौनक सीरत से होती है, सूरत से नहीं। जानकी बाई का बदल कहाँ है हुजूर। महाराज बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें इनाम इकराम से नवाज कर बाइज्जत वहां से रुखसती दी गई। खैर साहब, जानकी बाई जाहिरी बात है कई बड़े बड़े शख्सों को लाजवाब कर देती थी, जैसे कि आपने देखा, मगर एक बार किसी ने उन्हें भी लाजवाब कर दिया। आखिर 56 छुरी की अदाओं को सर करने वाला वो कौन था? वो थे साहब मजाज लखनवी, लखनऊ के मशहूर शायर मजाज लखनवी साहब, जिनकी अपनी अफसानवी शख्सियत के तज़किरे हश्र तक होते रहे। हुआ ये कि जिगर मुरादाबादी, जो एक बहुत ही बड़े शायर थे, वो अपने दोस्त मजाज साहब को किसी महफिल में ले गए। वहां जानकी बाई से उनका तारुफ कराया गया कि भाई इनसे मिलो मजाज, ये जानकी बाई हैं। और मजाज ने छूटते जवाब दिया कि रहने दीजिए जिगर साहब, रहने दीजिए, क्यों मिलवा रहे हैं। एक तो वो बाई कहीं की भी हो, खतरनाक होती, और ये तो जान की बाई है, तो ना भैया ना, हमें तारुफ नहीं कराइए इनसे। खैर साहब, तुम के बन सकती हो हर महफिल की फिरदौसे नजर, तुम की बन सकती हो हर महफिल में फिरदौसे नजर। मुझको ये दावा है कि हर महफिल पे छा सकता हूँ। तो ये किस्सा था 56 छुरी, किस्सा दिलरुबा की दिलरुबाई का। तो हाज़रीन, पेशे खिदमत है आज का आखिरी किस्सा, और आखिरी किस्सा है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार। तो हुआ ये कि पुराने लखनऊ के हुनरमंद किस्सा गो यूं फरमाते हैं कि लखनऊ का एक नामुराद आशिक जब जिंदगी से बहुत बेजार हो गया तो शहर के लोगों ने उसे फौज में भर्ती हो जाने की तजवीज की। कहा देखो भाई, कुछ नहीं, मुल्क के काम ही आ जाएगी तुम्हारी जिंदगी, यूं तो तुम नाकाम आशिक निकले, चलो मुल्क के ही काम आ जाओगे, अगर घर की होना है तो मुल्क की खिदमत में हो जाओ। खैर साहब, आशिक साहब ने फौज में भर्ती के लिए दरखास्त दे दी। अभी आशिक साहब इंटरव्यू देने पहुंचे तो सामने एक ऐसा गोरा अफसर होता है जो कमबख्त उर्दू समझ तो सकता है पर बोल नहीं सकता, और मसला ये है कि मैं आशिक साहब अंग्रेजी समझ तो सकते हैं पर बोल नहीं सकते। तो बड़ी दिलचस्प इंटरव्यू का आगाज की शुरुआत होती। तो होता ये है कि साहब अजीब गरीब किस्म का इंटरव्यू शुरू होता है। इंटरव्यू के लिए नाम पुकारा जाता है आशिक साहब का। तो आप ये शेर पढ़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं, तेरी महफिल में दिल थामे तेरा दीवाना आता है, तेरी महफिल में दिल थामे तेरा दीवाना आता है, ठहरे शम्मा जलने को तेरा परवाना आता है। अंग्रेज इनका हुलिया अंदाज देखकर जोर से हंसता, उसके बाद कहता है, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के यूं ना देखो, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के यूं ना देखो,
तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा ना बना दे। और अंग्रेज संजीदा होकर कहता है, बी सीटेड, बी सीटेड, व्हाट्स योर नेम देन, व्हाट्स योर नेम प्लीज। आप जवाब देते हैं, इश्क कहते हैं मुझे, इश्क कहते हैं मुझे, इश्क कहते हैं मुझे, हुस्न का दीवाना हूँ, इश्क कहते हैं मुझे, हुस्न का दीवाना हूँ, कहीं भंवरा हूँ, कहीं बुलबुल हूँ, कहीं भंवरा हूँ, कहीं बुलबुल हूँ, कहीं परवाना हूँ। हुस्न वाले मेरा अरमान किया करते हैं, जान मेरे नाम पे कुर्बान किया करते हैं। अंग्रेज कहता है, well hello Mr. Ishq, sit down then, where do you live, where do you live? आप फरमाते हैं जवाब में, एक जा रहते नहीं, एक जा रहते नहीं, आशिके बदनाम कहाँ, एक जा रहते नहीं, आशिके बदनाम कहीं, अमा दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं। अंग्रेज हैरतमंद होकर पूछता है, and how do you earn your bread and butter, Mr. Ashik? ये फरमाते हैं अपने अंदाज में, खूने दिल पीने को, लखते जिगर खाने को, खूने दिल पीने को, लखते जिगर खाने को, ये ग़िज़ा मिलती है लैला तेरे दीवाने को, ये ग़िज़ा मिलती है लैला तेरे दीवाने। अंग्रेज परेशान हो जाता है, मगर आगे पूछता है कि right, which religion do you follow? अंग्रेज परेशान, तो आप फरमाते हैं, हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, अगर काबा हुआ तो क्या, बुत खाना हुआ तो क्या। अब अंग्रेज चिल्ला जाता, Are you mad or what? What are these answers? Are you mad? मगर ये बेनियाजी से जवाब देते हैं, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। खैर साहब, अंग्रेज बौखल हो जाता है, What the hell you say? What are you all about? Who's called you here? आप फरमाते हैं, ये दिले मुंतजर से पूछ ए रौन के बज़्म, ए दिले मुंतजर से पूछ ए रौन के बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। अगर इस गुस्से में चिल्लाता है, get out of here immediately. आप फरमाते हैं, और होंगे वो तेरे बज़्म से उठने वाले, अरे और होंगे वो तेरे बज़्म से उठने वाले, हजरते दाग जहां बैठ गए। अंग्रेज बहरा जाता, चिल्लाता है, Will somebody get this man out? अब ये उठकर बाहर निकलते हुए फरमाते हैं, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले। और इसी बात पे हुजूर हमें भी यहाँ से कूच करने की इजाजत दे, हम भी हमारी रुखसती करें। तो ये थे किस्से। बहुत खूब जी, बहुत खूब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी वीडियो पे मैं और प्रीति और दिख रहे हैं मुझे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं। और अगर कोई सवाल करना चाहें तो दे मोस्ट वेलकम। आई वुड लव टू टॉक, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम पीपल। अगर कोई बात करना चाहे तो बड़ा मजा आएगा। आपने इतने सारे शायरों के कलाम पढ़ दिए इसी एक दास्तान में, तो गालिब है एक शेर जो मैं आधा सुना देता हूँ। जी जरूर। अरे इरशाद कहते हैं कि सुनील का है अंदाज़े बयां और नवाज़ी का शुक्रिया जी। मैं गुरलीन को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे ऑडियंस अगर वो अपना हैंड रेज करते हैं बात करने के लिए, तो प्लीज उनके माइक ऑन कर दीजिएगा। हाँ, माइक ऑन कर लीजिए जी। सो जितने भी हमारी ऑडियंस है, अगर आप इनसे कोई बात, पता नहीं कब फिर मुलाकात हो, ये कमबख्त कोरोना के जमाने हैं, तो यहीं मिल लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल।
यहीं पे थोड़ा जप्पी हो जाए, यहीं पे थोड़ी खुशनुमा बातें हो जाए. Amritsar se to somebody is saying that we are desperately waiting for your performance and you brought us loads of smiles and laughter. How lovely is that? How Brilliant. lovely. How lovely is हाँ, that? ये तो मेरा माजा उसका मेंबर ही है. और भी अगर कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा एंड विल आस्क यू टू फॉरवर्ड योर क्वेश्चन. अच्छा, ये अशोक पूछ रहे हैं कि लखनवी और लखनऊआ में फर्क क्या क्या है? फर्क है सुनील भाई? भाई जी. अभी मैंने आपको अर्ज किया ना, लखनऊ तो भाई नवाबजादों और शहजादियों और शहजादों और नवाबजादों की बात है करता है. लखनऊआ तो आम आदमी है, सड़क चलता आपके माई जैसा, तो वो है. There are 3 more hands, Siddharth, Dudhoria, Arvinder Chamak and one other. 3. जी फरमाइए. Gurleen? Yeah, I unmuted Siddharth. He is lowered his hand. आपका वीडियो ऑन करिए, हम आपका दीदार भी करें भाई. वीडियो ऑन कीजिए, आपकी आवाज आ रही है. पूनम जी ने कहा है कि वो लखनऊ से खुद हैं जी. और आपकी जो नरेशन थी वो उम्दा थी. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. क्या बात है, जरा नवाजी का शुक्रिया हुजूर. अखिलेश जी पूछ रहे हैं कि आपको ये शौक कब पड़ा? मैंने कहा ना साहब, ये तो बस लुत्फ आना शुरू हो गया, क्योंकि जब वालिदैन को सुनते थे बात करते हुए तो ही चस्का पड़ गया. कुछ बोलता Gurleen, नहीं. there are 3 raised hands. Open them. Ask them to come on. Yeah, I've unmuted Parveen Kaur right now. Hi Sunil, how are you? Very well. So much. I was just wondering that would Chappan Churi also have worn a mask and would that have been the new naqab? उसमें तो अंदाज जरूर होता, कम वक्त सीक्वेंस लगा के. छप्पन छुरी होती ना तो वो लेस लगा के और उसपे सीक्वेंस लगा के आती है. मुझे तो समझने में मुश्किल होती है वो गाने कैसे गाते हैं या शेरो शायरी कैसे करते हैं मास्क के नीचे से. बाकायदा पान की गिलोरी मुंह में रख के गाती है ऐसे करके. Thank you so much for bringing laughter. It was really nice. Thank you so much for being here. Loved it. Gee. Unmuting Shivansh right now. This is Shivansh. Having spent. Let me see your face, Shivansh. Let me see. Hello. Your face. Put your video on. Activate your video. This is good. दीदार तो हो. दीदार तो हो. It's just a treat for all of us. And having spent 10 years in Lucknow, and I would say that Premato, you can take a flight and just to have a khushbu of Hazratganj. I mean, those who have spent in Lucknow, it's really a treat, and we are really happy to listen to you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. लखनऊ के मुतालिक मेरा एक दोस्त था हबीब, जो मेरे साथ रहता था, लखनऊ का था. तो हम लोग चाय पी रहे थे तो हमने उसका एक मग चाय अपने लिए बनाया, एक प्याली अपने लिए बनाई, एक प्याली उनके लिए बनाई. तो उन्होंने हमें पूरी उसपे एक लखनऊ का कल्चर लेसन दिया. कहीं हमको कि ये तुम चम्मच जो हिलाते हो शक्कर डाल के तो टन 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 जो करते हो, एक बार ऐसे करो शक्कर घुल जाएगी. ठीक है. फिर आप फरमाते हैं कि चाय की प्याली पूरी मत भरो. तो ऐसे क्या, चले भैया चाय की प्याली पूरी भर दिया, तुम कम पी लेना, आधी छोड़ देना. कहते तुम समझते नहीं हो, हमारा हाथ दुख जाए. तो ये मैं यहाँ पे एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि लखनऊ में ना इवन जो मेड्स का डिक्शन है, जो घर में मेड्स आती हैं, उनका डिक्शन जब वो बोलती हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो दे आर एजुकेटेड, दे आर नॉन एजुकेटेड. So beautiful. That's very true. जी. Thank you so much for. Thank you. और Arvinder Chamak ji, I believe he wants to say something. जी Arvinder. मियां, गुरलीन ने मेरा वो वीडियो ऑफ किया हुआ है. ओपन करिए ऑन करिए. चलिए. मियां, मैं अब आपको क्या कहूँ.
आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी घर को देखते हैं हमारे मियां। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मजा आ गया, लुत्फानंदोज हुई रूह। चलो ये आप सब लोगों के साथ। और सुनील, let me share that this is such a beautiful initiative by Preeti ji and Maja House, and we are also, me and my other friend Dev Hindvi, we are also trying, we are coming up with a channel like उर्दू की मोहब्बत में जी, और उसमें हम हर जुमे और हफ्ते के रोज किस्से बयां कर रहे हैं, उसमें जरूर किस्सा लखनऊ और वो कर रहे हैं। और आज तो ऐसा लग रहा था कि बंद आंखें आप लखनऊ की, आज तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आप लखनऊ की बंद गलियों में से गुजर रहे हैं और दिलरुबा सच में आपके सामने, आंखों के सामने आपके खड़ी हुई। छप्पन छुरी I know. Fans fantasy. Beautiful, and thank you so very much. And we all are missing you. Thank you for being here. Thank you so much for being here. Amritsar is very special. It really is. It truly is. एक मैसेज मैंने पढ़ा था, कोई सत्संगत जी हैं एंड ही इज लेक्चरर, और उन्होंने कहा कि वो आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं कि वो क्लास में जब कोई कहानी पढ़ेंगे तो आपके अंदाज में उसको पढ़ के सुनाया करेंगे ताकि स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्ट लें। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ जाएगा। I would love to attend that class actually. मजा आएगा, मजा आएगा। गुरलीन और भी हैं जो बात करना चाहते हैं? So there is somebody with Galaxy Tab S5e. I have unmuted that person. So. Hi, my name is Arva, and I'm from Singapore. जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आदाब अर्ज़ है। आदाब, कैसे हैं आप? I was so excited. मैंने 5:50 का टाइम देखा और मैंने कैलकुलेट कर दिया रॉन्ग, so 7:20 को मैं लॉग इन करके बैठी हुई हूँ। Then I said, how come people are not coming in? And I realized, oh, I've calculated the time wrongly. I'm 1 hour earlier. I just. रिहाइश कहाँ किया? मैं पैदा हुई हूँ सिंगापुर में, फिर I was brought up for the first part of my life in Calcutta. अच्छा अच्छा। Now I can safely say most of my life I've been in Singapore. अच्छा अच्छा। So I was listening. अलग अंदाज है, शेयर कर दी। मेरा तलफ्फुज़ ना इतना बुरा है कि कभी-कभी मैं शेर बोलने की कोशिश भी करती हूँ तो चुप हो जाती हूँ। I'm so inspired. इस्तेमाल किया है आपने, तलफ्फुज़ जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छे लोग नहीं बोल पाते, तलफ्फुज़ का तलफ्फुज़ नहीं आता उन्हें। But really, it's so pleasant to be. I mean, I'm seeing. Sometimes I think we're living in the worst times, yet in the best times, because we have a roof. At least बातचीत करने की तो वापस से फैशन है ना? Correct. We managed to meet. We are getting to meet people. We are getting to exchange ideas. We are getting to do so many things. And thank you for. Today you were reading, right? But usually when you're on stage, it's all out of memory. Am I right? And how do you, and sometimes it goes on for an hour and a half. How do you remember that script? Because it's not like, कुछ भी डाल देंगे ना, improvise कर देंगे. बिल्कुल. This can't be improvised. एक हाशिया भी नहीं बदल सकते आप उसमें. Precisely. This is totally not improvisable. There is no teleprompter. There's nothing. वो दरअसल याद हो जाता है, because वो किससे इतने evocative होते हैं, वो literally ऐसा लगता है एक लफ्ज़ आपके सामने छपा हुआ जैसे आपके जहन में आता रहता है, like film unspooling in your head, and याद हो जाता है. इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है जो बहुत उम्दा डांसर हैं और इंटरनेशनल एक्लेम्ड हैं, नफ्ते जौहर, और मैं नफ्ते को अक्सर पूछता हूँ, तुम इतनी इंट्रिकेट कोरियोग्राफी करते हो, तुम्हें याद कैसे रहता है कि किस वक्त क्या करना है? Yes. तो बोला कि नहीं, it's just like anything else, you remember, your body remembers, तो यहाँ your mind remembers, वही फर्क है. So yeah. Beautiful. Thank you for making us part of this. Thank you so much. This is my first experience with these organizers, and I will send you my telephone number, and I would love to be part of this, even as an audience right now.
Oh, that would be lovely. We look forward to seeing you again. I'm actually a performer as well, but a part-time performer. I act and all that, and a full-time entrepreneur out here. अरे But वाह, अरे वाह. art से नाता बहुत पुराना है, and we really love to see art in different forms. How lovely, how lovely, how lovely. Very nice. Thank you for being here today. Thank you Means a so lot. much. Thank you so Welcome. much. Thank you for joining. It's so nice to see बेनकाब चेहरे. You know? Yes. मैं तो हर एक के हनुमान मास्क देख के परेशान हो गया था. Now at least I can see full faces. Yes. बाकी लगता है इंसानों की दुनिया में वापस आ गया. Yeah. Gurleen, और कोई है? Yeah, so I've unmuted Mantosh Singh right now. So maybe this can be the last question for the day. Hey Sunil, hope you're doing well. Gurleen, I think probably Farah is also raising her hand and Neena Singh is also raising her hand. So if you can just take them in for a moment, unmute themselves so that they can all, you know. The more the merrier, जी बोलिए. The more the merrier. Hi, are you able to hear us? I can hear you, but I can't see you. I'd love to see you. Oh, can you see me There now? you go. Oh, hi, Mantosh. Hello, Anju. How are you? My God, Singapore Hey, stand up in face. And we had you in full force as well, so. बाहर करो अभी. Sorry, Mantosh. One minute. हाँ जी. No, I said we had you in full force as well, so we made an event out of it. You know, there's really been very few opportunities last few weeks or a couple of months actually now. Quick, so excellent. Mantosh, तुम्हारा चेहरा नहीं very दिख well रहा. organized. चेहरा नहीं दिख रहा तुम्हारा. ठीक करो. वीडियो ठीक करो. हाँ, better. I can see both of you now. Okay. Lovely. Okay. Excellent evening. You know, very well organized, and we'd love to, you know, attend future sessions. And I've already sent my number to keep. Preeti is right here. She'll make sure you're in. So is Nazi, Excellent. and so is Gurleen, and you will be in, and so Gurpratap. That's the entire team, apart from some wonderful stellar people in Amritsar. So yeah. Maza aa raha hai. So quick, how long? ये जो लखनऊ अंदाज है, ये कितनी देर बचेगा? ये कितनी जब तक इंसान है बचेगा यार. जब तक हम लोग हैं कायम बचेगा. आप लोग सुनने वाले कायम रहिए, हम लोग सुनाने वाले कायम रहेंगे. लखनऊ है ही कायम. जाते जाते जाएंगे. आते आते. इस उम्मीद पे हम खुश रहेंगे. आ जाओ. Nice to see you. कोरोना हटाओ और आ जाओ यहाँ. Nice to see you. Lovely seeing you here, Anju. Chalo. Bye, Mantosh. I've unmuted Rakesh Mathur. Sorry, Gurleen? I've unmuted Rakesh Mathur. He's muted. No. He raised his hand for the question. हाँ तो उन्हें बुलाओ. हाँ राकेश बोलो. Sunil, can you hear me? I can hear you, but I can't see you. Yeah, now I can. Hi, sir. How are you? Guys, Sunil, how are you, Sunil? Lovely to see you, sir. No, don't say that. I have so much to learn from you, Sunil. What are you saying? Absolutely brilliant. Absolutely brilliant. And I must say the hotel industry missed something in you. I wish you had stayed on. Yes, I sometimes miss it very much. Yeah, I just want to mention to Preeti ji, there was some discussion about Lahore and Amritsar being culturally like twin cities, right? They were, yes. I have a very close friend in Lahore who's been at the center of a lot of cultural activity. And if ever you think of doing something together, please do let me know. I'd like to loop her into that. What's the name, sir? Who's this person? Her name is Naveed Shehzad. I would love to meet her, sir. She's been a professor. Yeah, she's been a film actor. She's done roles in many films. She's been a theater artist. She's actually a professor of English literature in Lahore University. So she's a person of great talents.
Oh, I'm in and out of And Lahore. I'm in and out of Pakistan. I really love the place. I have lots of friends there. So I've done about 4 trips, and I was about to go in December before this tamasha started. so I'd like to, Sunil, at some stage I'll connect you and Preeti ji with her. Okay? Thank you, sir. Thank you so much. And lovely seeing you. Thank you for being part of it. Please call me Rakesh, for God's sake. Yeah? Call me Rakesh. Sir, घुट्टी में नहीं है. मैं तो मरते दम तक आपको सर ही बुलाऊंगा. Can't do it, sir. Come on. नहीं, ऐसे नहीं सुनील. Talk to you too much. क्या करें? Lovely. It's been lovely, lovely. Okay. What an experience. Thank Preeti, that's my boss from the Oberois. Okay. Yeah, this lovely So, man. thank you. He mentored Thank me. you very much. I also wanted to say that we've started this new initiative, Rakesh, about Sanja Punjab, which we are doing with East and West. So it would be wonderful because we are trying to do just this kind of conversation. So जरूर बताइए मुझे. मैं आपको बताऊंगा, and I'll just SMS my telephone number on this. In any case, Sunil has my number. So. जी, Yeah, I will. Good, sir. As soon as this whole Okay, thing is thank over, you. let's meet Thank up. you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Tina. Thank you. Hanji, Preeti. Gurleen, ask Jasmeet Nair. She's got her hand up, Abhi. Yeah, unmuted her. Hello. बोलो उनको. हाँ. Hi, Hello, Sunil. Niku. How are you? I'm good. Good to अरे see you. मेरा इतना लिस्ट इंडोर्स किया आपने. मेरा सवाल बहुत अजीब है. थोड़ी सी गालियां निकाल के दिखाओ लखनवी अंदाज की. जैसे कि तुम पान वाले हो और बहुत सड़ भुज के घर आ रहे हो और बहुत अच्छा, वो अजीबी से एक गालियों वाली स्टोरी है और बड़ी मजेदार है. वो अगले टाइम आपको सुनाऊंगा कि लखनऊ में गाली दे. अच्छा, गुस्सा करके तो दिखाएं. अरे अगर कोई आदमी एकदम हक्का बक्का कमरे में दाखिल होता था तो एक हमारी रफ़ा आपा थी लखनऊ में, वो कहती थी अरे वो ऐसे कमरे में दाखिल हुए हौला खाफ्ता अंटा गफील. मतलब हौला खाफ्ता मीन जैसे उन्होंने अभी भूत देखा हो. अंटा गफील की पचाने की सुध नहीं थी. ऐसे दाखिल हुए हौला खाफ्ता अंटा गफील. This is very normal in Lucknow to hear language or to hear phraseology of that order. बड़ा मजा. Thank you. You're welcome. उसको कर लो महेश आगे. हाँ जी. Who else? Does Mahesh have his hand up, Abhi? Gurleen? Not right now, but I can look for him. Yeah. Maybe that could be the last one then. Sure. मेरे को तो क्या सब ये- नजर ही नहीं आ रहे. I think yeah, he left here. चैट में कमेंट आया है कि अमृतसर कुलचे खाने लखनऊ के कबाब याद आ गए. अच्छा, listen guys, I have a request. ये जो जी. comments हैं, is there a जी. way of getting these comments to me or isn't there? ये तो गुरलीन ही बता सकती है. गुरलीन, is it possible? Gurleen? I'll email Can you it to you. Thank you, darling. If you can email the comments to me, I would be really grateful. Yeah? Yeah. I would like that very, very गुरलीन much. कोई I फरा think Farah wants to speak. Farah Singh. Oh, Farah is from Lucknow. She wants to speak. मेरे दोस्त Unmuted her right now. हाँ, Yeah. बोलो. Hi, Adab, Sunil. आदाब, कैसी हो Farah? Hug to you, big hug to you. And the Habib he was talking about is my brother. So very fond memories of him. And just to share something really small, he was. कैसे कहता था Farah? मेरा हाथ दुख जाएगा. तो हम उनके कपड़े आए धोबी के वहां से और धोबी ने उनको दिए कपड़े तो कहने लगा आए बड़ा मुंह बना के यूं करके फेंक दिए. तो धोबी ने कहा भैया क्या हुआ, इस कपड़े तो साफ हैं. सो ही टर्न अराउंड, ही सेज इतना गलफ लगा दिया शोर करेंगे. That's a boof. Oh my God, that is a boof. He says Oh. he picked it up and ऐसे फेंक के कि अंदाज से कि इतना गलफ लगा दिया है, इतना शोर करेंगे मतलब पहनेंगे. अच्छा, but Farah, जी. Farah एक उनकी खाला थी
जो बड़ी इतरा के उनसे एक बार बोली और माशाल्लाह सेहत अच्छी, काफी सेहतमंद थी, तो उनसे कहती हैं कि हब्बू हमारे लिए भी तो कुर्ता बनवा दो ना। तो आप उनसे कहते हैं कि खाला ऐसा है, अभी हम कुर्ते बना रहे हैं, कनात बनाएंगे तो आपके लिए भी बना देंगे। हाँ, मुझे पता है, वो मेरी फूफी थी, उनकी खाला थी, हमने बहुत सुने बुरी बुरी चीजें सारी जिंदगी, उनके जुमले सहा है, बहुत कुछ सहा है। We were at the receiving end of it. He honed his sarcasm on us. We have been told, हम जब 12-13 साल के थे, and we had upper hair on the upper lip, and तो आके हम खाने की मेज पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने आके 4 आने ऐसे करके ड्रॉप किए और कहने लगा ये चवन्नी है और चौराहे पे नाई बैठा है, खुद साफ करवा लीजिए। I cannot tell you, it was so humiliating. We had 12 people, 12 लोग खाने की मेज पे बैठे हुए, और actually he dropped the चवन्नी, ये चवन्नी है और चौराहे पे नाई बैठा है, इसको साफ करवा। बहुत बदमाश है, उसका अंदाज ही मेरा। हाँ, 12-13 साल का कोई बच्चा, उससे अब आप इस तरह की बेहूदी बात करेंगे तो वो आज आपको, तो he just practiced all his meanness on us, and we just grew up being able to tolerate everything. So big hug to you, Sunil, because I miss him, and miss him as much as I miss him every day of my life. Yes, same here. He was such a dear brother. My life, and you know that. I know that. And so yes, big hug to you, and good to listen to you. बहुत मजा आया. Shukriya. Thank you. Thank you, Farah. Thank you for being here. G. Who else? Who else? I can see Rakesh over there. I am not able to see any raised hands on my screen. I don't know why. I think there are no more. No? Gurleen? Yeah, there are no. That's it, I think. Okay, Gurleen, just send me the comments when you can. Yeah. I'll send you the video as well as the comments. Bless you, girl. Bless you. Will you do it tonight? Yes. Lovely. Thank you so much. Thank you. Sunilji, thank She's you so very much. good. She's a great host as well. Oh, she's a fantastic host. Thank you. Pratap, thank you. You were so Pratap. Thank you. Pratap, you were very elegant. Thank you. Thank you so much. Thank you. और बिफोर वी साइन ऑफ, हालांकि आप सेशन के बारे में मैं क्या बोलूं, सारे ऑडियंस ने अपने रिव्यूज आपको दे ही दिए, और मैं छोटी सी बात ही कहना चाहता हूं कि आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा, जो कि मुझे पता है कि आपको अच्छा लगा, और आगे भी हमारे सैटरडे को भी सेशन है जिसमें टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की कुछ लेडीज हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेडनेसडे को वी हैव डॉली आलूवालिया ज्वाइनिंग अस फॉर अ कन्वर्सेशन विद सुनील मेहरा हिमसेल्फ, तो ये बैठे हैं यहाँ पे। तो अगर आप हमारे अभी तक मेंबर्स नहीं बने, दिस इज द टाइम टू बिकम वन एंड टू सपोर्ट व्हाटएवर वी आर डूइंग एट माजा हाउस, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपने हमें अपने नंबर भेजे हैं अपडेट्स के लिए, विल कीप यू अपडेटेड डेफिनेटली, पर आप भी प्लीज ज्वाइन कीजिए एंड सपोर्ट अस by becoming a member of Maja House. So on behalf of Maja House, on behalf of Preeti Gill, and on behalf of Sunil Mehra, I thank all of you. Khushamd. Thank you, Preeti. Thank you, Pratap, and thank you the whole team at Maja House. Allah Hafiz ji. Allah Hafiz. Allah Hafiz भैया नहीं, ये पाकिस्तान में भी कोई नहीं बोलता। Allah Hafiz is good enough. चलो शब्बा खैर तो सारी कहते होंगे। The same people who say Ramadan instead of Ramzan. You know, it is Ramadan and it is Khuda Hafiz. Thank you. नीचे फरा का मैसेज भी आ गया है कि खुदा हाफिज ही कहते हैं। चलो जनाब शब्बा खैर तो कहते होंगे। चलो, थैंक यू जी। Take care everybody. Bye Preeti. Bye. Good night. बहुत मजा आया। Bye. Bye.